Hi, this is Sudhir Barge. We went for a holiday for 3 days to Saguna Bagh. What you are seeing is the breakfast being served to us in our rooms, and we were having it on the table in the balcony. The next day, for lunch, we visited the common dining room, where there were at least 50 to 60 visitors having lunch, a buffet lunch. The vegetarian meal was quite delicious and very, very filling and very tasty too. This is the spread layout of the items, and now I'm panning on to show you all the visitors having their meals. Plus, there are some people to serve. After that, we went to the riverside, which is about a kilometer away from our pond houses. Lots of people were enjoying themselves near the river. There was kayaking and buffalo riding, plus people were allowed to swim if they wanted to. That is the buffalo being taken inside for people to sit on and ride. This is the view of the surrounding Neral area. A nice set of steps has been made for sitting out. These are the tables laid out for the camping site. The riverside has an open tent camping area. The tents were quite decent and comfortable to sleep in. I suppose a big party was coming. That's why the tables and the benches have been laid out. We did go for a paddle boat ride on the lake inside the Saguna Bagh. This is a video of the paddle boat ride around the lake. There were plenty of geese roaming around, and the reflection of the coconut trees and the houses in the lake was mesmerizing. These are the simple paddle boats where two persons paddle like a cycle. Then we visited the bird sanctuary area. This was a Singapore parrot, very colorful. And there was another whitish bird, I do not know the name, but again that bird too was very, very colorful. You'll just see it in a short while. Ujjwala also visited the emu's pen. Quite daring of her to get inside the pen along with the emu. The emu was as big as her height. She's chatting with the keeper and asking him what is fed to the emu, to which the keeper replied that plain wheat. There was also a colorful iguana kept in one of the cages. Seemed quite docile, though looked fearsome. Then we went to see the horse riding. About 15 or 20 horses had been brought in for the tourists to ride on. Very handsome looking creatures. Surprisingly, there were lots of takers for the horse riding session. These are the cattle of the Saguna farm.
and that is the male stud buffalo, followed by his huge harem of female buffaloes. They seem to be going for a graze in the countryside. इसे हम ड्रैगनेट कहते हैं। नेटिंग के अलग अलग प्रकार रहते हैं। इनमें से एक रहता है गिल नेट। एक गिल नेट समंदर या रिवर में किया जाता है और गिल नेट एक मराठी में और इंग्लिश में ड्रैगनेट कहते हैं। और इस ड्रैगनेटिंग के लिए कम से कम 15 ऑन करके रख सकते हैं। यहाँ पर हम स्लेट वाटर की मत्स्य खेती करते हैं। यहाँ पर जितने सारे फिश हैं सब फिश स्लेट वाटर के फिश हैं, जिसमें तिलापिया, रोहू, कटला, सिल्वर का, चाइनीज का, फ्रेश वाटर जायंट प्रॉन और Would you come this side? खाली बघा पायाकडे ते बघ बघ सामने जो पहला फिश और पिराना पाठीमाग लगे किती मोठं मैडम स्मूथ है ना पडशील और मराठी में इसे गौसिया फिश इस नाम से बुलाते हैं ताकि पानी में जितना भी एल्गी या गौसिया फिश वही ले रहा है और एक गौसिया फिश स्वीट वाटर में कम से कम सकता है। नाही राहणार सर पडेल तो पडेल सेफ्टी पकड़ा नॉट मी मला नको कॅमेरा काय ना करत तो और मराठी में इसे शिप्राना उसके चेहरे के सामने दो पीछे है, उसका पेट आगे है, इसलिए हम इसको चाइनीज फिश के नाम से बुलाते हैं। और ये फिश इंडिया में हर जगह पे मिलता है, इसलिए इसको कॉमन कार्प इस नाम से भी बुलाते हैं। और कई जगह पर इसको कोई वैरायटीज है। इनमें से हमारे सामने जो पिराना है इसका नाम है पिराना। ये फिश जो है ज्यादा अग्रेसिव नहीं है और गलती से मुंह में उंगली जाएगी तभी वो बाइट कर सकता है, वैसे कुछ करेगा नहीं। आप उसके दांत भी देख सकते हैं पिराने के। अगर आप में से किसी ने फिश को टच किया होगा तो उनके स्किन के ऊपर एक ऑयली क्लियर रहता है। उस ऑयली क्लियर की वजह से अगर गलती से फिश हमारे हाथ से नीचे गिर जाता है तो उसको हो चुके हैं, आप अपने गाइड के साथ आगे जा सकते हैं। आपसे दाखवून झालेले आहे सर्वांनी आपल्या गाइड सोबत पुढे जायचं आहे। जोरदार ताली से बच्चों का हम स्वागत करते हैं।
हमारे सामने जो पहला लड़का आया है इसका नाम है हेमंत चौहान, SY बीकॉम में पढ़ता है। ये लड़का दादर में श्री समर्थ नाम की व्यायामशाला है, उस व्यायामशाला में मल्लखंब में लड़का सेकंड आ चुका है और ये लड़का नेशनल लेवल में खेल चुका है। स्टार्टिंग में उनके जो खुद के प्रकार है वो खुद के प्रकार यहाँ पर दिखाने वाले हैं। खुद के प्रकार होने के बाद उनके ग्रुप में जितने सारे डेमो रहेंगे वो डेमो हमें दिखाने वाले हैं। तो सामने जो दिखा रहा है इसे कहते हैं मल्लखांब पगले पद्मासन, मल्लखांब ओपन फरारा, तो हस्तपदासन, मल्लखांब खंडा फरारा, मल्लखांब बैक फोल्ड, वन हैंड मयूरासन, मल्लखांब स्टैडल, मल्लखांब बजरंग, टू धाप एंड टू कैच। हमारे सामने जो दूसरा लड़का आया है इसका नाम है भावेश गायकर, 12 स्टैंडर्ड में पढ़ता है। ये लड़का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मल्लखांब में सेकंड आ चुका है और ये भी नेशनल लेवल में खेल चुका है। मल्लखांब चैलेंज, ये लड़का 10 फीट के कमर के ऊपर एक पैर के ऊपर खड़ा रह चुका है और जो भी अपना बॉडी का वेट है यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ दिया था। इसे कहते हैं मल्लखांब वीर भद्रासन। फिर से एक बार उस लड़के ने अपनी गर्दन में अपना पैर डाल दिया है और जो भी अपना बॉडी का वेट है यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ रहा है। इसे कहते हैं मल्लखांब चतुरासन। तो धाप, वो लड़का हमें जो स्पीड में करके दिखा रहा है इसे कहते हैं गोपन पद्धत। टू धाप उनका मल्लखांब का पहला डेमो हमारे सामने हो चुका है। सबसे ऊपर हैंड स्टैंड और नीचे 2 ओपन फरारा। उनका मल्लखांब का दूसरा डेमो हमारे सामने हो चुका है। सबसे ऊपर चतुरासन, नीचे 2 बजरंग, बाजू में साइड टची और सबसे आगे चतुरासन। उनके मल्लखांब के जितने सारे डेमो थे वो डेमो यहाँ पर दिखाकर हो चुके हैं। अभी हमारे सामने एक रोप है, उस रोप के ऊपर हम रामदेव बाबा जैसे आसन के अलग अलग प्रकार देखने वाले हैं। और अभी हमारे सामने हमारे भविष्य के रामदेव बाबा आ चुके हैं, लेकिन उस रामदेव बाबा को दाढ़ी है, इसको सिर्फ दाढ़ी नहीं है। ये लड़का इस रोप को न छोड़ते हुए हमें आसन के अलग अलग प्रकार दिखाने वाला है। और पहला प्रकार हमारे सामने हो चुका है पद्मासन का ही हस्तपदासन, निद्रासन। वो लड़का उस रोप को छोड़ नहीं रहा है और हमें अलग अलग प्रकार दिखा रहा है। उस लड़के ने पैरों के उंगलियों में उस रोप की नॉर्मल ग्रिप पकड़ी है और जो भी अपना बॉडी का वेट है यहाँ पर वो पूरी तरह से छोड़ रहा है। इसे कहते हैं चतुरासन। फिर से
से हमारे सामने आया है अनिकेत भोईर। ये लड़का जितना सारा रोप है वो रोप अपने पैरों में फंसाने वाला है। इस रोप से वो खुद की छुटकारा कैसे पाने वाला है अभी हम सामने देखने वाले हैं। असं सोडणार आहे बघ बहुत बढ़िया। रोप हम एक ही रोप के ऊपर एक साथ अपन के 3 प्रकार देखा है। सबसे टॉप है सेकंड वीर भद्रासन और हस्तपदासन। बॅग सारखं यशवी आज तो गाड़ो खाओ भी दो तुम लोगों जो Ghost. You stand behind him. That is Nash's son trying his hand out with the dumbbells in the open gym area. Very enthusiastic and a very healthy youngster. He doesn't seem to have enough of it, and that's his mom guiding him to do it properly and making a video out of it. He wants to do more and more of it. Doesn't seem to be tiring him. After that, we went to see the lotus pond. The lotus pond was one of the most beautiful spots of Saguna Bagh. It's a medium-sized pond with lots of lotuses and water lilies. In fact, we had a guide with us who explained to us the difference between the lotuses and the water lilies. For us, they looked just the same, and I thought it would be so wonderful if we could pluck a few, but then they were so beautiful and so colorful, we didn't even feel like touching them, but just admiring them from the distance. The local guide did explain to us that it was not very difficult to grow lotuses or water lilies at home. I have heard that one can get the lotus and water lily seeds even on Amazon. I must try this out once I get back to Atashree Baner in Pune. Wow, a huge white lotus, and that is the Datta Mandir right in the center of the lake with a nice cute looking Datta statue. After the pond house, we went for a walk along the pathways in Saguna Bagh, and
we're admiring the reflection of the houses and the coconut palms, coconut trees in the lake. This is a view of the premium pond houses, and the front two that you see, the brownish one, is the classic pond houses. There are two of them, and they are a bit separated from the 5 premium pond houses in the rear, that is near the coconut trees on the left. The reflection in the water in the pond was mesmerizing and looked very, very beautiful. तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाए. In the evening there was a campfire, and in the campfire there was a local singer entertaining us. Surprisingly, today was also Ujjwala's 73rd birthday. So it really made the day for her to have this song, and we did dance to the local Hindi and Marathi songs and enjoyed ourselves. सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, ये तेरी सांस चलती जिधर. The staff was so well trained that once I told them that it was my wife's birthday, they went and brought her a present and brought an impromptu present for her. She was really floored by the kind gesture of the staff from Saguna Bagh. Hats off to Saguna Bagh. मळ्याच्या मळ्यामध्ये कोण गावी राखण करते मीरावची. मळ्याच्या मळ्यामध्ये कोण गावी राखण करते मीरावची. रावजी हात नका लाव तुम्ही पाहिल कोणी नरे. रावजी हात नका लाव तुम्ही पाहिल कोणी नरे. ही चाल दुरू दुरू उडते केस बुरू बुरू, डाव्या डोल्यावर पटटलली. जशी मावल्या त्या उन्हात केवडाच्या बनात नागिन सर सरली. लटपट लटपट तुझं चालणं मोठ्या डकऱ्याचं, चालणं हे मोठ्या डकऱ्याचं, बोलणं हे मंजुल नकऱ्याचं, बोलणं हे मंजुल नकऱ्याचं. नारी ग नारी ग नारी ग नारी ग नारी ग. रेशमाच्या रेगानी लाल गाल धाग्यानी, रेशमाच्या रेगानी लाल गाल धाग्यानी, कर्नाटकी कशी जाऊ गाडीला. हात नका लावू हिच्या साडीला, हात नका लावू हिच्या साडीला, हात नका लावू हिच्या साडीला. ओ जांभूळ पिकल्या झाडाखाली ढोलकुणाचा आवाज येतो. ओ जांभूळ पिकल्या झाडाखाली ढोलकुणाचा आवाज येतो. हो 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 ढोल वाजवी वाजव, ढोल वाजवी वाजवी, ढोल कोणाचा वाजवी. नील सागरी दुनियेची सफर देशील का, गोव्याच्या किनाऱ्यावर नकवा भरीन नेशील का. नील सागरी दुनियेची सफर देशील का, नको बघू असं मणी होतंय कसं माझ्या काळजानं भरलीला. तुझ्या नजरेच्या चाल्यामध्ये कालीच गुंतल पार, गोव्याच्या किनाऱ्यावर नकवा भरीन नेशील का. नील सागरी दुनियेची सफर देशील का. अय्या हो अय्या
Okay, thank you so much.